हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट पार्ट नंबर 2। डिस्क्लेमर: द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the images. क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं. A certain sum amounts to 81,840 rupees in 3 years and to 92,400 rupees in 5 years at X% per annum under simple interest. If the rate of interest becomes X plus 2%, then in how many years will the same sum become double itself? इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Certain sum amounts to 81,840 rupees in 3 years and to 92,400 rupees in 5 years at X% per annum under simple interest. If the rate of interest becomes X plus 2%, then in how many years will the same sum become double itself? आंसर होगा थर्ड 10. Solution using concept 9.1. प्रिंसिपल 3 इयर्स बाद कितना हो रहा है 81,840 और फिर उसके 2 इयर्स बाद हो रहा है 92,400 रुपीज. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इक्वल टू कितना आ गया 10,560. फॉर 3 इयर्स कितना हो जाएगा ये 2 इयर्स का आया 10,560 तो 1 ईयर का आएगा 5,280. तो फॉर 3 इयर्स आ जाएगा 5,280 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू आएगा 15,840. तो प्रिंसिपल इक्वल टू 81,840 माइनस 15,840. तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 66,000. तो रेट परसेंट इक्वल टू 5,280 डिवाइडेड बाई 66,000 मल्टीपल बाई 100. तो रेट परसेंट इक्वल टू आ जाएगा 8%. यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट है आपका 66,000 रुपीज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका 66,000 मल्टीपल 8 प्लस 2 इंटू टी डिवाइड बाई 100. तो यहां से टी बराबर 10 ईयर्स आएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. A sum of 10,500 rupees amounts to 13,825 rupees in 3, 4 by 5 years at a certain rate percent per annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier rate? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A sum of 10,500 rupees amounts to 13,825 rupees in 3, 4 by 5 years at a certain rate percent per annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier rate? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 8,750 रुपीज. सॉल्यूशन इंटरेस्ट इन 3, 4 बाई 5 ईयर्स इक्वल टू आ जाएगा 13,825 माइनस 10,500 इक्वल टू आएगा 3,325. इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स आ जाएगा आप लोगों का 3,325 मल्टीपल बाई 5/10 मल्टीपल बाई 5 और इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 4,375.
After the rate is doubled, the interest equal to 2 multiple by 4375 इक्वल टू आ जाएगा 8750 और यही आपका आंसर होगा. The amount of 12,000 rupees is taken at a certain rate of simple interest. After 4 months of borrowing in amount of 6,000 rupees has been added to the principal and the rate of interest was doubled against the previous rate to receive total 2,880 as interest at the end of the year. Calculate the interest rate initially paid. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The amount of 12,000 rupees is taken at a certain rate of simple interest. After 4 months of borrowing in amount of 6,000 rupees has been added to the principal and the rate of interest was doubled against the previous rate to receive total 2,880 as interest at the end of the year. Calculate the interest rate initially paid. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 10%. Solution using concept 9.1. Using simple interest बराबर P into R into T upon 100. According to question, 18,000 multiple by 2R multiple by 8 divided by 100 multiple by 12 plus 12,000 multiple by R multiple by 4 divided by 100 multiple by 12 इक्वल टू है 2800. तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 280 R इक्वल टू 2800, यानी कि हेंस x बराबर इक्वल टू आ जाएगा 10%. इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे r बराबर 10%. आगे बढ़ते हैं. A sum of 8,400 rupees amounts to 11,046 rupees at 8.75% per annum. Simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of 9,600 rupees at the same rate for the same time? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा. और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A sum of 8,400 rupees amounts to 11,046 rupees at 8.75% per annum. Simple interest in a certain time. What is the simple interest on the sum of 9,600 rupees at the same rate for the same time? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 3,024 rupees. Solution using concept 9.1. Using सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 11,046 माइनस 8,400 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 8,400 मल्टीपल बाई 8.75 मल्टीपल बाई टी डिवाइडेड बाई 100. तो आएगा 2,646 इक्वल टू 73,500 मल्टीपल बाई टी डिवाइडेड बाई 100. तो यहाँ से टी बराबर निकल कर आ जाएगा आपका 3.6 ईयर्स. Now again using सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आ जाएगा 9,600 मल्टीपल बाई 8.75 मल्टीपल बाई 3.6 डिवाइडेड बाई 100. हेंस सिंपल इंटरेस्ट बराबर निकल कर आएगा 3,024 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. Suresh lent out a sum of money to Rakesh for 5 years at simple interest. At the end of 5 years, Rakesh paid 9/8 of the sum to Suresh to clear out the amount.
फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Suresh lent out a sum of money to Rakesh for 5 years at simple interest. At the end of 5 years, Rakesh paid 9/8 of the sum to Suresh to clear out the amount. Find the rate of simple interest per annum. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 2.5% पर एनम। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.1। यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा मैं, पी इंटू आर इंटू 5/100 इक्वल टू 1/8 इंटू पी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू है 1/8 पी। तो हेंस रेट बराबर निकल कर आएगा 2.5% पर एनम, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। The rate of simple interest on the sum of money is 5% per annum for the first 4 years, 8% per annum for the next 3 years, and 10% per annum for the period beyond 7 years. If the simple interest accrued by the sum over a period of 10 years is 1,850 rupees, then the sum is 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The rate of simple interest on a sum of money is 5% per annum for the first 4 years, 8% per annum for the next 3 years, and 10% per annum for the period beyond 7 years. If the simple interest accrued by the sum over a period of 10 years is 1,850 rupees, then the sum is, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 2,500 रुपीज। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल रेट इक्वल टू 4 मल्टीपल बाई 5% प्लस 3 मल्टीपल बाई 8% प्लस 3 मल्टीपल बाई 10%, तो सॉल्व करेंगे इक्वल टू आ जाएगा 74%। 74% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू 1,850 रुपीज गिवन है। हेंस प्रिंसिपल इक्वल टू 1,850 डिवाइडेड बाई 74%, तो ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 2,500 रुपीज, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। A sum at simple interest becomes 14,880 rupees after 3 years and 16,800 rupees after 5 years. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 years in rupees. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A sum at simple interest becomes 14,880 rupees after 3 years and 16,800 rupees after 5 years. Find the simple interest on the same sum at 10% per annum for 4 years in rupees. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 4,800 रुपीज। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.2। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इक्वल टू है 14,880 रुपीज। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 years इक्वल टू है 16,800 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years बिटवीन 5th एंड 3rd ईयर इक्वल टू आ जाएगा 1,920 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year इक्वल टू आ जाएगा 1,920 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 960 रुपीज।
तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इक्वल टू 960 मल्टीपल बाई 3 इक्वल टू 2880 रुपीज। अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट आफ्टर 3 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years और इक्वल टू ये आपका निकल कर आएगा 12,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 40%। हेंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 40% ऑफ 12,000 इक्वल टू आ जाएगा 4,800 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 40% कैसी आया? एक साल की रेट 10% है, 4 साल की बात हो रही है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 40%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। A sum of 10,200 rupees is invested partially at 8% per annum and remaining at 6% per annum for 3 years at simple interest. If the total interest is rupees 2,124, how much money was invested at 6% per annum? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The sum of 10,200 rupees is invested partially at 8% per annum and remaining at 6% per annum for 3 years at simple interest. If the total interest is 2,124 rupees, how much money was invested at 6% per annum? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 5,400 रुपीज। सॉल्यूशन, इंटरेस्ट फॉर 3 years इक्वल टू 2,124 रुपीज गिवन है। तो 1 year कितना हो जाएगा? 2,124 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 708 रुपीज। यूजिंग एलिगेशन मेथड 612 पे आ रहा है आपका 6%, 816 पे 8%, ठीक है, और 708 डिवाइडेड बाई 102, तो यहाँ से आ जाएगा एलिगेशन जब यूज करेंगे, यानी कि 108:96 यानी कि 9:8 आ जाएगा। तो सम इंटरेस्ट एट 8% इक्वल टू कितना है? 10,200। तो 8 बराबर 10,200, 1 बराबर 600। Hence the sum invested 6% equal to 9, that is 9 into 600, तो आ जाएगा यहाँ पे 5,400 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा और इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the annual rate of simple interest increases from 11% to 17.1 by 2%, a person's yearly income increases by 1,071.20 rupees. The principal amount invested in rupees is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If the annual rate of simple interest increases from 11% to 17.1 by 2%, a person's yearly income increases by 1,071.20 rupees. The principal amount invested in rupees is, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 16,480 रुपीज। सॉल्यूशन, टोटल इंक्रीज इन एनुअल रेट ऑफ एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 17 1/2% माइनस 11% इक्वल टू आएगा 6 1/2%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 1/2% इक्वल टू 1,071.20 रुपीज। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे और 100% की वैल्यू निकल कर आएगी 16,480 रुपीज।
हेंस प्रिंसिपल इक्वल टू 16,480। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A man invested an equal sum at the same rate of interest on simple interest for T and T plus 4 years, and the respective ratio of interest is 1:2 respectively. Find T. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A man invested an equal sum at the same rate of interest on simple interest for T and T plus 4 years, and the respective ratio of interest is 1:2 respectively. Find T. चार ऑप्शंस दिए गए हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। A man invested an equal sum at the same rate of interest on simple interest for T and T plus 4 years, and the respective ratio of interest is 1:2 respectively. Find T. सॉल्यूशन होगा ऑप्शन 4 और आंसर भी आएगा 4। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.1, assuming money interest equal to y rupee, rate of interest equal to r%. According to question, 1/2 equal to y into r into t upon y into r into t plus 4, using simple interest बराबर p into r into t upon 100. Hence t इक्वल टू सोल्व करने के बाद निकल कर आ जाएगा आपका 4 years, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। When two equal amounts are deposited for 5 years and 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively, and the difference of their interest is 475, find the deposit amount. चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। When two equal amounts are deposited for 5 years and 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively, and the difference of their interest is 475, find the deposited amount. आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 5,937.5 रुपीज। सॉल्यूशन total interest for first amount equal to 5 multiple by 7% equal to 35%. Total interest for second amount equal to 3 multiple by 9% equal to 27%. डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 35% माइनस 27% इक्वल टू 8%, और जो गिवन है इक्वल टू 475। तो 8% ऑफ P इक्वल टू 475, हेंस P इक्वल टू 5,937.5। तो देखते हैं, इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स द सम एट 20% पर एनम। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In how much time will the simple interest on a certain sum of money be 6/5 times the sum at 20% per annum? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 6 years। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.1, यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 6 सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6/5 P गिवन है, तो 6/5
P इक्वल टू 20 मल्टीपल बाई P मल्टीपल बाई स्मॉल t डिवाइडेड बाई 100। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा एक तो, हेंस बाकी सोल्व करेंगे तो t बराबर 6 ईयर्स आएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। A sum of 9500 rupees amounts to 11,495 rupees in 2 years at certain rate percent per annum. Interest compounded yearly. What is the simple interest in rupees on the same sum for the same time and double the rate? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A sum of 9500 rupees amounts to 11,495 rupees in 2 years at certain rate percent per annum. Interest compounded yearly. What is the simple interest in rupees on the same sum for the same time and the double rate? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 3800। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.1। तो यहाँ से रेशो निकाल लूंगा 11,495 इज टू 9,500, तो ये आ जाएगा 121 इज टू 100। स्क्वायर रूट करूंगा, 2 साल की बात हो रही है तो 11 इज टू 10 आएगा, तो यहाँ से रेट निकल कर आ जाएगी 1/10 इक्वल टू 10%। एट डबल रेट, ठीक है, यानी कि 20% हो जाएगी, तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा और फॉर्मूला यूज करूंगा SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यू को पुट करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 9500 मल्टीपल बाई 20 मल्टीपल बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, तो इक्वल टू निकल कर आएगा 3800 रुपीज और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 7500 रुपीज इन 5 years and to 8500 rupees in 7 years at simple interest at the same rate of interest. The rate of interest per annum is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A sum of money amounts to 7500 rupees in 5 years and to 8500 rupees in 7 years at simple interest at the same rate of interest. The rate of interest per annum is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 10%। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 9.1। In 2 years amount becomes 8500 from 7500। इंटरेस्ट इन 2 years इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000। इंटरेस्ट इन 1 year इक्वल टू आ जाएगा 500 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 7500 माइनस 5 मल्टीपल बाई 500 इक्वल टू आएगा 5000। हेंस रेट बराबर 500 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीपल बाई 100, तो इक्वल टू आ जाएगा 10% और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।